Hi all, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to the second lecture of our series around mathematical equations. Okay, so in the last lecture we discussed about linear equations. Today we shall move to quadratic equations. So let's talk about quadratic equations. So as we discussed in the last lecture, what is a linear equation? Linear equation is something where power of x is 1. So x plus 2x equal to 3. So everywhere if you see the power of x is 1. Okay. But in today's lecture we will target a quadratic equation. Quadratic equation is something where power of x becomes 2. Okay. The highest power of x becomes 2. So let's say x square plus x equal to 4. So we can, by simply looking at it, we can see that the highest power of x is 2 because power of x here is 2 or यहाँ पे power of x is 1. So the highest is 2, hence it is a quadratic equation. Okay. So one should be very clear what type of the equation they are solving. Basis on the basis of that, they can solve that equation. So quadratic equations. Okay. Now there are multiple ways of solving a quadratic equation. Okay, let's say a quadratic equation is x square plus 5x plus 4 equal to 0. Okay, so this is a quadratic equation. Okay, we can see it is a quadratic equation. So x square plus 4 equal to 0. Now before we try to solve this quadratic equation, one has to identify three variables, three values a, b, c. Okay, because there is a formula we use for solving the quadratic equations. Okay, I am discussing the formula approach. There is approach of factorization and can be elimination as well, but we will not go into that. Okay, because when we have the formula we can apply that wherever required. If you want to factorize in some questions while we practice some questions, so we'll do that, but for the scope of this lecture I'll just use the formula x equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So if we use this formula, it directly gives us the value of x. That is what? The root of x, because what is the goal of solving equation? Finding the value of x. Like earlier we were doing x plus 2 equal to 0, so we were finding x is minus 2. Now here also we want to find the value of x, but we cannot segregate x apart. Okay, so we have an inbuilt formula for this, minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, now you may ask like what is a, what is b, what is c, a क्या है, b क्या है, c क्या है. Okay, so that is very important और इसमें अक्सर students confuse हो जाते हैं. ठीक है, a क्या है, b क्या है, c है. तो a is something coefficient of x square, कि आपकी इक्वेशन में आप x square को ढूंढो, x square के साथ क्या लिखा है. जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, डिफॉल्ट इट इज 1. सो द कोफिशिएंट ऑफ x square becomes whatever is the कोफिशिएंट, जो भी x square का कोफिशिएंट होगा वो becomes a. b क्या है? x का कोफिशिएंट. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x. x के साथ क्या लिखा है? क्या है x के साथ? 5. और c वो वैल्यू है जिसके साथ x है ही नहीं, ना तो x ना x square, कांस्टेंट. c is 4, the constant term. Okay, constant term which is 4 here. ठीक है, and your quadratic equation should be in this proper format. ऐसा नहीं होगा कि आपने लिखा है x square plus 5x plus 4 is equal to x. नहीं, आपको टर्म्स क्लब करके रखना है. ठीक है, x स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ हो, x वाले एक साथ हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे x का एक टर्म यहाँ पड़ा है, एक x का टर्म यहाँ पे पड़ा है. दिस इज नॉट अलाउड इफ यू वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ठीक है, सो विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस इक्वेशन. लेट्स सी हाउ इट गोज. सो लेट्स से अगेन वी हैव x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर minus 3 equal to 7. ठीक है, before solving I want you to keep the equation in its standard form. Standard form is ax square bx plus c equal to 0. ठीक है,
इसको याद कर सकते हैं, बट मेन इसका कहने का मतलब क्या है कि आपकी एक्स स्क्वायर की टर्म्स एक साथ हो, एक्स की टर्म्स एक साथ हो, कांस्टेंट एक साथ हो, और सब कुछ कहाँ हो, लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे एक एक्स स्क्वायर ये, एक एक्स स्क्वायर ये, ऐड करेंगे कितना बनेगा 3x स्क्वायर, देन x की और कोई टर्म नहीं है, वी हैव 4x, एंड देन वी हैव -3 एंड 7, तो इस 7 को भी इधर लाएंगे, 3 - 7 इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड दिस इज -10 इक्वल टू 0। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब आप देख के बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज 3, x का कोफिशिएंट b इज 4, और कांस्टेंट टर्म विद साइन लेना है आपको, ठीक है, -10। तो अगर एक बार a b से आइडेंटिफाई हो गया तो फिर हमें फॉर्मूले में बस वैल्यू डालनी, ठीक है, बट यू हैव टू राइट इक्वेशन इन सिस्टमैटिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बाद ए बी से आइडेंटिफाई करके फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, ठीक है। जैसे इसी को हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो हमारा ए हो गया 3, बी हो गया 4 और सी हो गया -10। सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू -b -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, -4 a की वैल्यू इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज -10 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 है, 2 × 3। तो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे, बन जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो गया प्लस, 4 3 = 12 एंड ये बन गया 120 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये प्लस माइनस का क्या फंडा है। प्लस माइनस का कुछ फंडा नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, ठीक है, 2 रूट्स आते हैं मतलब 2 वैल्यू आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे हमारा लीनियर इक्वेशन में x + 4 = 7, इसमें x की वैल्यू कितनी आती है 3, a की वैल्यू आती है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आएंगी, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो इसकी 2 वैल्यू क्या होंगी, -4 प्लस लेंगे एक बार अंडर रूट ऑफ 120 130 136 डिवाइडेड बाय 6, एक वैल्यू ये हो गई, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। दूसरी वैल्यू हो गई -4 माइनस अंडर रूट ऑफ 136 डिवाइड बाय 6। तो ये 2 वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। एक नया फ्रेश एग्जांपल करते हैं जिसमें हम पूरा एंड तक करेंगे, ठीक है, वैल्यू निकालेंगे। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में जाए, उसके बाद आइडेंटिफाई ए बी सी एंड उसके बाद उसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 = 0, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, चेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है एक साथ है, एक्स वाली एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, = 0 फॉर्म। तो a आइडेंटिफाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ 2, b आइडेंटिफाई करेंगे x के साथ क्या है 5, और कांस्टेंट टर्म आइडेंटिफाई करेंगे c है 2, ठीक है। फॉर्मूले में डालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 25 -4a is 2 and c is 2 डिवाइडेड बाय 2 × a, ठीक है। -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 - 16 डिवाइडेड बाय 4, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 9 कितना 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको 2 में स्प्लिट करेंगे, एक बार प्लस लेंगे -5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, एक बार माइनस लेंगे -5 - 3 डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/4 विच इज -12, और एक वैल्यू क्या आ गई -8/4 विच इज -2, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो उसके रूट्स, क्या रूट्स आए -12 और -2। अब मान लो आपको डाउट हो रहा है आपका आंसर सही है कि नहीं है, हाउ टू चेक। तो आप रूट का मतलब क्या है, वो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करे। अगर आप -2 उठा के इस इक्वेशन में डालेंगे, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम डाल देते हैं -2 डाल देते हैं, 2 × x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 2, ये आ जाएगा 2 × 4 -10 प्लस 2
दिस बिकम्स 8 माइनस 10 प्लस 2, तो ये -2 + 2 = 0। तो रूट जो हमारा आया इसका मतलब ही यही है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। जैसे लीनियर में भी होता था x + 2 = 0, x आ जाता था -2। अब इस रूट को वापस इस इक्वेशन में डालोगे, -2 + 2 = 0, तो इक्वेशन दोनों तरफ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यही मतलब है इक्वेशन का रूट निकालने का, या सॉल्व फॉर x या वैल्यू ऑफ x। तो आज हमने ये सारा काम किसके लिए किया? क्वाड्रेटिक के लिए किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें इक्वेशन डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं होगी बट क्वाड्रेटिक बन सकती है। लेट्स सी, क्योंकि एक्चुअल जब आप प्रॉब्लम ये क्वाड्रेटिक कोई बोला है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है तो उसमें तो वो देगा बना के, बट हो सकता है फिजिक्स में आप कुछ कर रहे हैं, मैथ में कुछ कर रहे हैं, इक्वेशंस बन गई विच इज़ नॉट डायरेक्टली क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल 1/x + x = 4। अब ये नहीं पता चल रहा क्वाड्रेटिक है कि नहीं, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में x × 1x, 1 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x × x, x²। अब बन गया x², तो 1 + x², इसको उधर ले जाएंगे = 4x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके फॉर्म में लिखेंगे हम, पहले x² वाली टर्म लिख देंगे, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट 1 = 0। तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी बट डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं थी, ठीक है। सो आवर गोल इज टू ब्रिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। क्या हो गया? a कितना आ गया? 1, x² के साथ क्या है? b कितना आ गया? x के साथ क्या है? -4, और c कितना आ गया? 1, ठीक है। नाउ -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू डालेंगे, -b हो गया माइनस और -4, 4 + -√b² is 16 -4, a is 1, c is 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो ये कितना आ जाएगा? 4 + -√16 - 4 is √12 / 2, ठीक है। तो 4 यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 बाहर, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 4 + 2 √3/2 एंड 4 - 2 √3/2, ठीक है। ये कैंसल आउट कर सकते हो, 2 + √3 और 2 - √3। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट, 2 + √3 और 2 - √3। ये इसके इरेशनल रूट्स आए तो हम जेई के हिसाब से जब जेई +1 वाली सीरीज बनाएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो रूट्स हैं, इरेशनल रूट्स हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक जैसे 3 + √5 होगा, दूसरा 3 - √5 ही होगा फॉर इरेशनल रूट्स, ठीक है। तो ये सब हम उसमें स्टडी करेंगे, लेकिन फॉर द स्कोप ऑफ दिस सीरीज, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब आपके लिए भी थोड़ा काम दे देते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। x² 5/4 7x + 5 = 0। ट्राई टू सॉल्व दिस। एंड एक जेई लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग इट यू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप ट्राई करें, वरना इसका अलग वीडियो हम निकाल सकते हैं कि y = √(x + √(x + √(x) up to so and so on infinity, ठीक है। तो ये करना मैंडेटरी नहीं है, बट फ्रॉम द स्कोप ऑफ दिस वीडियो ये दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, ठीक है। एंड इसको इंटरेस्टिंगली देखना, ये भी फर्दर बॉयल डाउन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो जाता है, ठीक है। So I hope you understood what we discussed. Try to solve these questions and comment your answers in the comment box. Okay. Thank you.